اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہمارا کلاس شیڈیول اور کلاس کی ترتیب یہ ہوگی کہ ہم آج سے 20 منٹ کے 3 پیریڈ بنا لیں گے۔ کتنے منٹ کے؟ 20 منٹ کے 3 پیریڈ۔ پہلا پیریڈ 20 منٹ کا نحو کا اور دوسرا 20 منٹ کا صرف کا اور تیسرا 20 منٹ کا لینگویج کا۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری ترتیب ہوگی۔ جو کو ہوسٹ صاحبہ ہے وہ 20 منٹ کے بعد مجھے فوراً اطلاع دیں گی یا میسج کریں گی یا جو ہے آپ میں سے کوئی بھی مجھے فوراً بتا دے کہ جی یہ ٹائم اتنا ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم نحو کی طرف آتے ہیں۔ میں نے کل یہ بات عرض کی تھی، اگر کچھ لوگ کلاس میں نئے ہیں، اگر ان کا آج پہلا لیکچر ہے یا پہلا سبق ہے تو پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ میں آج جو سبق پڑھاؤں گا وہ بالکل ایسے ہی پڑھاؤں گا کہ اگر کسی نے پچھلی کوئی کلاس نہیں بھی لی، اگر کسی نے گزشتہ کوئی کلاس نہیں بھی لی تو انہیں پچھلی کلاس کے پڑھے ہوئے کی محتاجگی نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے، اگر وہ پچھلی کلاس نہ بھی لیں تو انشاءاللہ انہیں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اچھا جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں انشاءاللہ آج کا سبق اسی طرح پڑھاؤں گا کہ آپ کو گزشتہ سبق کی محتاجگی نہیں رہے گی۔ صرف ہم پچھلی بات کو تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں تاکہ بات تازہ ہو جائے، اس کے بعد ہم آگے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ہم نے ابھی تک صرف 2 باتیں پڑھی ہیں۔ پہلی بات ہم نے یہ پڑھی، ہماری جو پہلی بات ہے یا ایک اصول جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ زبان کیسے سیکھی جاتی ہے، زبان کیسے سیکھی جاتی ہے، یہ ہم نے اصول پڑھا ہے۔ اور اس اصول میں ہم نے صرف 3 باتیں پڑھی ہیں۔ کتنی باتیں پڑھی ہیں؟ شاباش، 3 باتیں پڑھی ہیں۔ کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ شاباش، ہاتھ کھڑا کریں۔ کون کون یہ بتا سکتا ہے کہ ابھی تک ہم نے جو 3 باتیں پڑھی ہیں وہ کون سی ہیں؟ طوبہ انصاری، آپ بتائیں ابھی تک ہم نے کون سی 3 باتیں پڑھی ہیں کہ کسی بھی زبان کو جاننا، سمجھنا، بوجھنا السلام ہو علیکم۔ تو اس کے لیے آپ کے پاس صرف 3 سٹیپس ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ نمبر 1 الفاظ، نمبر 2 الفاظ کو جوڑنے کا جو اب طریقہ، آپ نئے ہیں وہ سمجھ لیں کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے الفاظ۔ آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہونا چاہیے۔ اب الفاظ کا ذخیرہ بھی ہونا چاہیے، الفاظ کو درست پڑھنا بھی آنا چاہیے، اور الفاظ ایک لفظ سے دیگر الفاظ بنانے کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ یعنی ورڈز جملے کے اندر یہ ساری بحث آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس الفاظ کا ایک لمبا چوڑا ذخیرہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ پہلا اصول ہے۔
دوسرا اصول کیا ہے کہ آپ کو الفاظ کو اچھی طرح پڑھنا آنا چاہیے کہ اس کو کس طرح ہم نے پڑھنا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک لفظ سے جو کئی الفاظ بنائے جاتے ہیں اس کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر میں اس کو تھوڑا سا بالکل مختصراً سا ایکسپلین کروں تو جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہی نہیں ہے تو آپ کسی سے بات کیسے کریں گے؟ آپ اس زبان کو سیکھیں گے کیسے؟ آپ کو پڑھنا ہی نہیں آتا. اگر ایک کلمہ ہے، ایک لفظ ہے، اس کو کئی طرح پڑھا جا سکتا ہے. ایک کلمہ ہے اس کو کئی طرح پڑھا جا سکتا ہے. آپ کو درست پڑھنا آنا چاہیے. مثال کے طور پر ہمارے اردو میں ایک کلمہ استعمال ہوتا ہے، میں بھی اس کو استعمال کر رہا ہوں، اور وہ کیا لفظ ہے، کیا کلمہ ہے؟ وہ کلمہ ہے استعمال. استعمال استعمال. اب دیکھیں کوئی اس کو استعمال بھی پڑھ سکتا ہے، استعمال پڑھتے بھی ہیں لوگ، ٹھیک ہے، لوگ پڑھتے بھی ہیں. تو استعمال. اب اس کو پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے. اچھا جی، تو میں بتا رہا تھا کہ پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے. پھر اب ایک کلمہ ہے اس سے کئی کلمے بنتے ہیں. مثلا استعمال اگر ایک کلمہ ہے تو استعمالات. مستعمل ہم عموماً کہتے ہیں نا، مستعمل کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا. اب مستعمل کہاں سے بنا ہے؟ مستعمل استعمال سے بنا ہے. مستعمل جو ہے یہ کہاں سے بنا ہے؟ استعمال سے بنا ہے. اچھا جی، تو الفاظ کو پڑھنے کا طریقہ، پھر ایک لفظ سے دیگر الفاظ بنانا، یہ پہلی بات ہے. جی آگے جی، اور کیا ہم نے پڑھا تھا بتائیں. فاطمہ حسین آپ بتائیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی سوری، کوشچن کیا ہے کہ الفاظ سے پہلی منزل میں نے کہا تھا کسی زبان کو سیکھنے کے لیے ہمیں 3 سٹیپس کو اپنانا ہے. پہلا سٹیپ ہمارا ہو چکا، دوسرا کیا ہوگا؟ دوسرا کہ جو کلمہ ہوتا ہے وہ اس پہ مشتمل ہوتا ہے. کلمہ حفظہ خان آپ بتائیں. نہیں فاطمہ، حفظہ آپ بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی. سر آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ الفاظ سیکھنا ہوتا ہے، دوسرا جو ہوتا ہے وہ الفاظ کو جوڑنا ہوتا ہے، الفاظ کو جوڑنے کا طریقہ، جی ٹھیک ہے. اور اور جو تیسرا کیا ہوگا؟ جملے. جملہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، جی یہ جی بنیادی سا اصول تھا کہ ہم کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے، میں نے یہ بات پہلے دن بتائی سمجھائی تھی کہ دنیا کی کوئی بھی زبان ہے وہ جملوں کی صورت میں بولی پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، دنیا کی کوئی بھی زبان ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں جملوں کی صورت میں بول رہا ہوں. دنیا کی ہر زبان چاہے وہ لکھی ہو، پڑھی جائے، بولی جائے، تو وہ جملوں میں ہوتی ہے. پھر جملے جو ہے یہ الفاظ سے بنتے ہیں. جملے کس سے بنتے ہیں؟ الفاظ سے بنتے ہیں. تو یہ 3 باتیں. اب چونکہ ہمارا کورس ہے عربی گرامر اور عربی لینگویج، ہمارا کورس کیا ہے؟ عربی گرامر اور عربی لینگویج. عربی گرامر اور عربی لینگویج کو سیکھنے کے لیے آپ کو 2 علم سیکھنے پڑیں گے. کتنے علم سیکھنے پڑیں گے؟ جلدی لکھ کے بتائیں مجھے. شاباش، جلدی لکھ کے بتائیں. کتنے علم سیکھنے پڑیں گے؟ 2 علم. کون کون سے 2 علم ہمیں سیکھنے پڑیں گے؟ ایک علم نحو اور دوسرا علم صرف.
لکھیں بھائی، بولے نا، لکھیں علم نحو اور علم صرف۔ علم نحو کا کیا کام ہے ہم پڑھ چکے ہیں کہ علم نحو ہمارے 3 کام کرتا ہے۔ علم نحو ہمارے کتنے کام کرتا ہے؟ 3 کام کرتا ہے۔ گزشتہ سبق اس کے اوپر بھی تفصیل ہو چکا، میں واٹس ایپ گروپ میں ویڈیو نہیں بھیج سکا کیونکہ وہ ویڈیو میں کئی دفعہ دن میں ٹرائی کیا، وہ ویڈیو گروپ میں گئی نہیں۔ تو بہرحال وہ ویڈیو آج رات کو اگر گروپ میں جا سکی تو میں گروپ میں بھیج دوں گا۔ تو کل ہم نے جو پڑھا تھا وہ کل والا سبق ہی ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوا، یوٹیوب پہ ہو چکا ہے تو کلاس گروپ میں اپلوڈ نہیں ہوا، تو کلاس میں بھی انشاءاللہ آ جائے گا۔ تو ہم نے صرف 3 باتیں پڑھی تھیں کہ نحو ہمارے 3 کام کرتا ہے۔ کتنے کام کرتا ہے؟ 3۔ نمبر 1، اسم فعل حرف کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا طریقہ۔ یہ بات بھی میں نے بتائی تھی کہ عربی کے جو کلمات ہیں وہ کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ عربی کے کلمات جو ہیں وہ صرف 3 طرح کے ہوتے ہیں، اسم فعل اور حرف۔ تو علم نحو پہلا کام کیا کرتا ہے؟ اسم فعل حرف کو جوڑنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اسم فعل حرف کو جوڑنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ کس کو کہاں پہ رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے۔ جیسے آپ انگلش میں پڑھتے ہیں نا کہ جی پہلے سبجیکٹ آئے گا، پھر ورب آئے گا، پھر آبجیکٹ آئے گا، پھر کہیں پہ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ واز آئے گا، کہیں پہ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ ور آئے گا۔ تو یہ سارے اصول عربی کے یہ علم نحو بتاتا ہے کہ جملہ بناتے ہوئے کس کو کیسے جوڑنا ہے۔ یہ علم نحو کی پہلی بات ہے جو علم نحو سے ہم سیکھتے ہیں۔ دوسرا، اور ان کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو، یعنی اسم فعل حرف کے آخری حرف اسم فعل حرف کے آخر کو کیسے پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے سامنے عربی کلمات ہوں تو آپ دیکھیں گے کہیں پہ آتا ہے زیدن، کہیں پہ آتا ہے زیدن، اور کہیں پہ آتا ہے زیدن۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں لکھ بھی دیتا ہوں، زیدن، ٹھیک ہے، اور زیدن اور زیدن۔ اب صحیح کیا ہے؟ کہاں پہ دن پڑھنا ہے، کہاں پہ دن پڑھنا ہے، کہاں پہ دن پڑھنا ہے، یہ سارا کچھ علم نحو بتائے گا۔ اور آپ اچھی طرح یہ بات سمجھ لیں، آپ اچھی طرح یہ بات سمجھ لیں کہ جو عربی کی کتابیں ہوتی ہیں ان کتابوں میں زبر زیر پیش نہیں ہوتی۔ جو عربی کی کتابیں ہیں ان کتابوں میں جو عبارت لکھی ہوتی ہے اس پر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہوتی۔ اب آخر ہر کلمے کے آخر کو کیسے پڑھنا ہے یہ علم نحو بتائیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر پورا جب جملہ بن جائے گا، یہ جملوں کے بارے میں بھی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ علم نحو بتائے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ علم نحو کا کام ہے۔ اور علم صرف کا کام کیا تھا کہ کلمات کے آخر سے پیچھے کو کیسے پڑھنا ہے، اور دوسرا کہ لفظ سے دیگر الفاظ کیسے بنانے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ آپ کے سامنے قرآن مجید ہے، یہ آپ کے سامنے کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، سب کو نظر آ رہا ہے؟ تو میں آپ کو بالکل شروع میں لے جاتا ہوں، آپ کو بالکل واضح پتہ چل جانا چاہیے کہ نحو کیا کرے گا اور صرف کیا کرے گا۔ ہاتھ کھڑے کریں، شاباش۔ میں جسے کہوں وہ اپنا مائک کھولے۔ افشاں شریف، آپ اپنا مائک کھولیں، اور جب میں کہوں کہ آپ اپنا ہاتھ نیچے کر لیں تو تب آپ نے اپنا ہاتھ نیچے کر لینا ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، آپ کو قرآن مجید نظر آ رہا ہے جی سب کو؟ جی سر۔ یہ الحمد، یہ ایک کلمہ ہے۔ الحمد کیا ہے؟ ایک کلمہ ہے۔ لفظ اللہ یہ ایک کلمہ ہے۔ رب ایک کلمہ ہے۔ العالمین یہ ایک کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، الحمد آخر میں
पेश पड़ा, दू, ये हमें नहव बताता है या सरफ बताता है आखिर को कैसे पढ़ना है? आखिर को पढ़ने का जो तरीका होता है वो हमें इल्म नहव बताता है अब कि कैसे पढ़ना। इल्मे नहव जो बताता है ना, उसको मैं सबज कर रहा हूँ। देखें, ये आखिर को पढ़ना कैसे है, ये इल्मे नहव बताएगा। ठीक है, जी सर। लिल्लाही, लफ्ज़ अल्लाह के आखिर में ये जो जेर पड़ी है, ये हमें कौन बताएगा? नहव, इल्म नहव। नहव। एक बात ध्यान में रखें, कोई ये ना सोचने लग जाए कि हमें कैसे पता चलेगा। और आज हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि आखिर को जो पढ़ना है, ये हमें किसने बताना है? इल्मे नहव ने। रब्बी नहव के में आखिर को कैसे पढ़ रहे हैं? रब्बी के आखिर में क्या है? जेर है, तो तो ये इल्म एक नहव बताएगा। अल आलमीना, आखिर में क्या है? जबर। जबर, ये हमें कौन बताता है? इल्मे नहव नहव। बताता है। शाबाश। अब आप अपना माइक भी बंद कर दें और नीचे चले जाएं। हिफ्जा खान, आप अपना माइक खोलें। किन्होंने अपना जी माइक सर। खोला है? हिफ्जा ने खोल लिया। अच्छा, जी सर। अलहम्दु, दाल को कैसे पढ़ना है, ये तो हमें इल्मे नहव ने बता दिया। अब जी उससे सर। पीछे अलहम, ये किसने बताया हमें? इल्मे सरफ ने। इल्मे सर्फ ने। शाबाश। लिल्लाह, हा, आखिर में हा है, इसको पढ़ने का तरीका तो नहव बताएगा, लेकिन इस पिछले को पढ़ने का तरीका कौन बताएगा? इल्मे सरफ। इल्मे सर्फ बताएगा। अच्छा, जी। इल्मे सर्फ का एक और काम भी है, लफ्ज जी। से अल्फाज बनाना। देखें, जी सर। अर्रहमान, अर्रहीम, अर्रहमान, अर्रहीम, और जी। अर्रहमा, अर्रहमा। ठीक है। जी। इसके बाद रहीम, मिसाल के तौर पर एक और लफ्ज ले लो, रहीम। ये सब एक जगह से बने हैं, लेकिन जी सर। रहमान अलग है, रहीम अलग है, रहमा अलग है, रहम अलग है। तो ये जी। एक ही लफ्ज के अंदर जो तब्दीली हो रही है, कभी कैसे पढ़ा जा रहा है, कभी कैसे पढ़ा जा रहा है, ये कौन बताता है हमें? इल्मे सर्फ। इल्मे सर्फ बताता है। शाबाश। इल्मे सर्फ हमें गाइड करता है कि एक ही कलमे को जो मुख्तलिफ तरह से पढ़ा जाता है, क्या उसूलो ज़वाबित है। तो जब आप इल्मे सर्फ पढ़ेंगे, आपको बड़ी वजाहत से पता चल जाएगा कि अर्रहमान क्यों पढ़ा, अर्रहीम क्यों पढ़ा, अर्रहमा क्यों पढ़ा, रहीम क्यों पढ़ा। ठीक है। जी सर। जी सर। ठीक है। तो अभी तक जितनी बात हुई उसमें हमें पता चला कि इन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दु के आखिर में, आखिर को दू, लिल्लाही की ही, रब्बी की बी, अल आलमीना का नून जबरना, और रहमानी, और रहीमी, ये नहव ने बताया कि कलिमात के आखिर को कैसे पढ़ना है। कलिमात के आखिर को कैसे पढ़ना है, ये किसने बताया? सारे लिख के बोलो। शाबाश। जल्दी बोल, जल्दी 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 सारे लिखें अभी। इल्मे नहव ने। हाँ, आप अपना माइक जरा बंद कर दें। जी। अच्छा जी। और अलहम्दु, दू से पीछे पीछे अलहम, अलहम, ये जो इसको कैसे पढ़ना है, ये हमें किसने बताया? सरफ ने। अल आलमीना, अल आलमी, ये पिछले सारे को पढ़ने का तरीका किसने बताया? सरफ ने बताया। और दूसरा अर्रहमान, अर्रहीम, ये एक ही जगह से दो लफ्ज बने। तो ये जो एक ही लफ्ज के कई आगे अल्फाज बनते हैं, जैसे जागना या पढ़ाना, पढ़ाना, पढ़ाने वाला, पढ़ा हुआ, पढ़ने वाले, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ा था, मुख्तलिफ है ना। तो ये इल्मे सर्फ बताता है। क्लियर हो गया जी? अच्छा जी, अब आ जाए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये एक जुमला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये क्या है? पूरा एक जुमला है।
इसको जो जोड़ा गया है, अगरचे आपको भी अभी नहीं पता किसी को भी के जोड़ने का तरीका क्या है, लेकिन इतना तो आपको पता है ना कि इसको जो जोड़ने का उस्लूब और तरीका है, ये हमें कौन सा इल्म बताएगा? लिख के बताएं, शाबाश। कौन सा इल्म हमें बताएगा? नहव बताएगा। कौन सा इल्म बताएगा? नहव बताएगा। क्लियर हो गया जी? अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये एक जुमला है। जाहिर सी बात, जुमले की कई किस्में होती हैं। उर्दू में भी कोई मुस्बत जुमला होता है, कोई मनफी जुमला होता है, कोई सवालिया जुमला होता है कि नहीं होता? अब ये जुमला कौन सा है, ये हमें कौन बताएगा? इल्मे नहव। ये हा दूसरी होती है हदीस वाली, नहव। तो आई थिंक कि आप सबको बखूबी ये बात पता चल गई, कि किसको कैसे, किसका काम क्या है, नहव का काम क्या है और सरफ का काम क्या है। मेरे ख्याल में ये बात बिल्कुल क्लियर कट सबको समझ आ गई है। शायद कि आप में कोई ऐसा हो जो ये सोचे कि ये बात बार बार क्यों रिपीट हो रही है, मतलब मैं बार बार इसी बात पे जोर दे रहा हूँ 2-3 दिन से, ऐसा ही है ना? ये क्यों मैं इतना जोर दे रहा हूँ? इल्म के उसूल का एक उसूल याद रखिएगा। इल्म के उसूल का एक उसूल याद रखिएगा, और वो उसूल क्या है? वो उसूल है, ये मैं वो उसूल लिखने लगा हूं। वो उसूल क्या है? वो उसूल ये है, किराअतु हर्फिन तकरारु अल्फिन। कहते हैं कि हरफ पढ़ो एक बार, लेकिन उसको दोहराओ 1000 बार। कोई भी एक हरफ, एक कलिमा भी आप पढ़ते हैं तो पढ़े एक बार, लेकिन उसको दोहराएं कितनी दफा? 1000 बार। उसको दोहराएं कितनी दफा? 1000 बार। ठीक है जी? तो अब ये कुछ इस्तिलाहात हैं जो आपके सामने पढ़ी जाने लगी हैं। उम्मीद है आप में से कुछ को इनके बारे में पता होगा और कुछ को आज पता चल जाएगा। अच्छा, आप ये बात तो आपने पढ़ ली कि अरबी जुबान के जो कलिमात होते हैं वो कितने होते हैं, मुझे बताएं शाबाश। अरबी जुबान में जितने भी कलिमात आएंगे वो कितनी तरह के होंगे? लिख के बताएं। 3 तरह के। कौन कौन से? वो कलिमात कौन कौन से होंगे जी? 3 तरह के कौन कौन से होंगे? इसम, इसम प्लस फेल और प्लस हरफ। ठीक है जी? पूरी अरबी लुगत में जितने भी वर्ड्स यूज होते हैं वो इन 3 के अलावा कोई चौथा हो सकता नहीं। 3 के अलावा कोई चौथा हो सकता नहीं। ठीक है? अच्छा जी, अब कुछ इस्तिलाहात हैं, ये आपने पढ़नी है। तो कहते हैं जी, हरकत, जबर जेर और पेश में से हर एक को हरकत कहते हैं। जबर जेर और पेश में से हर एक को हरकत कहते हैं। मुतहर्रिक हरकत वाले हरफ को कहते हैं। मुतहर्रिक हरकत वाले हरफ को कहते हैं। देखें जी, मैं आपके सामने एक लफ्ज लिखता हूं, बल्कि मैं लिख देता हूं अलहम्दु, अलहम्दु लिल्लाही, लिल्लाही। अच्छा जी, अब ये जबर अल के ऊपर क्या है? ये क्या है जी? जबर। तो ये भी हरकत है। दू के ऊपर क्या है? पेश।
तो ये भी क्या है जी, हरकत है। और लाम लिल्ला, लाम के नीचे क्या है, जेर, तो ये भी क्या है जी, हरकत है। ठीक है जी। और हम कह सकते हैं कि हमजा भी मुतहर्रिक है, दाल भी मुतहर्रिक है, और लाम भी क्या है, मुतहर्रिक है, क्योंकि इनके ऊपर हरकत जो है। तो जबर जेर और पेश में से हर एक को हरकत कहते हैं, और मुतहर्रिक हरकत वाले हरफ को कहते हैं। अच्छा, अब जबर और जेर और पेश का एक नया नाम आज आपको पता चलेगा, और हमेशा आपने यही नाम यूज करना है, यही नाम इस्तेमाल करना है। ये लिखा है जी फतहा, जबर को कहते हैं, जबर का दूसरा नाम क्या है, फतहा। जबर का दूसरा नाम क्या है, फतहा। कसरा जेर को कहते हैं, जेर का दूसरा नाम क्या है, कसरा। जम्मा पेश को कहते हैं, जम्मा पेश को कहते हैं। ठीक है जी। तो थोड़ा तकरार हो जाए अभी। अल के हमजा पर जो जबर है, इसको आप जबर भी कहेंगे, लेकिन ग्रामर में आप इसको फतहा कहेंगे। दाल के ऊपर जो पेश है, आप इसको पेश नहीं बल्कि जम्मा कहेंगे, जम्मा। और लिल्ला, लाम के नीचे जो जेर है, इसे आप क्या कहेंगे, कसरा कहेंगे। क्या कहेंगे जी, कसरा कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते हैं सुकून, हरकत ना होने को सुकून कहते हैं, और इसकी अलामात ये 3 लिखी हैं। अगर किसी कलिमे पे हरकत ना हो तो उसको सुकून कहते हैं, और उसकी ये 3 अलामतें यूज होती हैं, एक ये और एक ये इस तरह 3 तरह अरबी लिखने में, अरबी के मुख्तलिफ रस्मुल खत होते हैं ना जी, तो सुकून की ये 3 अलामतें हैं जो आपके सामने हैं, मैंने लिख दी। अच्छा जी, तनवीन, 2 जबर 2 जेर और 2 पेश में से हर एक को तनवीन कहते हैं। ये भी आपको पता चल गया कि तनवीन किसको कहते हैं, 2 जबर 2 जेर और 2 पेश में से हर एक को तनवीन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके सामने एक लफ्ज लिखता हूं, जबालुन, जबालुन, किसी को पता है जबालुन किसको कहते हैं? किसको पता है? जिसको पता है वो लिख के बताए, जबालुन किसको कहते हैं? शाबाश, लिख के बताएं। पहाड़ को कहते हैं, शाबाश। अच्छा, जबालुन। अच्छा, जिदारन, जिदारन, जिदार किसको कहते हैं? शाबाश, बताएं। दीवार को। और कुफलिन, कुफलिन, कुफल किसको कहते हैं? ताले को। अब आप कह सकते हैं जबालुन, जिदार और कुफल, इनके आखिर में तनवीन है। जबल के आखिर में भी तनवीन है, जिदार के आखिर में भी तनवीन है, और कुफल के आखिर में भी तनवीन है, क्योंकि 2 जबर 2 जेर 2 पेश में से हर एक को क्या कहते हैं जी? तनवीन कहते हैं। हर एक को क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद है मफ्तू, मकसूर, मजमूम और मुशद्दद। मफ्तू, मकसूर, मजमूम और मुशद्दद। बड़ी आसान सी बात है जी, जिस हरफ पर जबर हो, जबर को फतहा कहेंगे और उस हरफ को मफ्तू कहेंगे। इधर माइक खोलें, जरा हाथ खड़े करें ना, जिसको मैं कहूँ वो अपना माइक खोले। उम्मे अब्दुल्ला, आप अपना माइक खोलें, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि ये जो जबल है, जबल, जबल के ऊपर जी सर। ये जो हरकत है, इसको क्या कहते हैं? सर ये मफ्तू। जबल के ऊपर जो हरकत है वो फतहा है,
फतह, जी सर। और जीम क्या है? मफ्तू। जीम जी क्या सर, है? जी मफ्तू है, जीम मफ्तू है और हरकत फतह की है। हाँ, जीम पर जो हरकत है वो फतह है, और जीम खुद क्या है? मफ्तू है। मफ्तू है, जी सर। ठीक है? अच्छा, जिदारन, जिदारन। मुस्फिरा, आप अपना माइक खोलें, शाबाश। आप माइक भी बंद कर दें और हाथ भी नीचे कर लें। मुस्फिरा। जी सर। हाँ जी, जिदार जो जीम है इस पर क्या हरकत है? कसरा। कसरा। और जीम को क्या कहेंगे? मकसूरा। मकसूर। जीम को क्या कहेंगे? मकसूर। ये मकसूर। देख लें, मकसूर वो हरफ जिस पर कसरा हो, वो हरफ जिस जी। पर कसरा हो। कसरा। अच्छा, इसके बाद आगे जी, माइक खोलें, माइक खोलें जी। मैं शगुफ्ता, शगुफ्ता कमर, आप माइक खोलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। सलाम। कुफल, कुफल। जी जी। कुफल के काफ पर कौन सी हरकत है? जम्मा। जम्मा। कुफल की काफ पे कौन सी हरकत है? जम्मा। जम्मा। तो जी। काफ क्या हुआ? मजमूम। मजमूम। और एक और बात भी है, ये जी तो जी। एक बात होगी ना। देखिए, जी कुफल काफ, अगर हम मुतहर्रिक और साकिन के लिहाज से बात करें तो काफ मुतहर्रिक है और लाम भी मुतहर्रिक है, लेकिन फा जो है ये साकिन है। ठीक है? जी। जी जी। मुतहर्रिक उसको कहते हैं जिस पे हरकत हो, और जी साकिन उसको कहते हैं जिस पे सुकून हो। जी। ये तो बिल्कुल इब्तदाई बातें हैं ना, मेरे ख्याल में जी हर जी। एक को समझ आ गई होगी। मैं जरा, मेरे ख्याल में ज्यादा इस पे टाइम लगा रहा हूँ, आगे चलते हैं। मुशद्दद वो हरफ जिस पर तशदीद हो, जैसे मोहम्मद, मोहम्मद मीम पे शद है, तो जिस हरफ पर शद की अलामत हो उसे क्या कहते हैं? मुशद्दद कहते हैं। सबको समझ आ गई? अच्छा, इसके बाद आगे क्या है जी? आगे है वाहिद, तस्नीया, जमा। हमारी आम जुबानों में ना सिर्फ उर्दू में या वाहिद होता है या क्या होता है? जमा। लेकिन अरबी में तीन चीजें हैं। वाहिद और जमा के दरमियान तस्निया भी है। वाहिद और जमा के दरमियान क्या है? तस्निया। ठीक है? वाहिद किसको कहते हैं? एक को। वाहिद किसे कहते हैं? एक को। वाहिद किसे कहते हैं? एक को। और तस्निया किसको कहते हैं? लिख के बताएं, शाबाश। दो को। तस्निया किसे कहते हैं? दो को। और जमा किसको कहते हैं? जमा किसे कहते हैं? शाबाश। जमा किसे कहते हैं, बताएं मुझे। अब एक बात ज़हन में रखिएगा, आपकी एक एक चीज दुरुस्त होनी चाहिए। किसी ने जवाब दिया, बाज ने ये लिखा कि तीन को जमा कहते हैं, एक ने लिखा चार को जमा कहते हैं। ये जवाब गलत है। जमा किसको कहते हैं? जमा की तारीफ क्या है? जो दो से जायद हो, जो क्या हो? दो से जायद हो। अब दो से जायद कितने? दो से जायद तीन भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, करोड़ भी हो सकते हैं, अरब भी हो सकते हैं और खरब भी हो सकते हैं। तो जमा का जो माना होता है ये गैर मुतय्यन शुदा। जमा जो है, जमा, इसका जो माना होता है ये मुतय्यन नहीं होता। दो से जायद पर बोला जाता है और फिर वो कितने ही हो सकते हैं। ठीक है? तो ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद है जी मुतकल्लिम, मुखातब और गायब। इसको अच्छी तरह पहले
इनका तलफ़ुज़ दुरुस्त कर लें, मुतकल्लिम, मुतकल्लिम, 3 दफा दोहराएं सारे, मुतकल्लिम, 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 मुखातब, मुखातब, मुखातब। अब ये ना हो कि कल को मैं पूछूं तो कोई कहे मुतकल्लम, मुतकल्लम गलत है। कल को मैं कहूं तो मुखातब की बजाय कोई कहे मुखातिब, नहीं, ये नहीं दुरुस्त, मुखातिब नहीं कहना, मुखातब। गाइब, गाअब नहीं कहना, गाइब। गाइब में तो कोई गलती नहीं करेगा, लेकिन मुतकल्लिम और मुखातब को बोलने में अमूमन गलती कर जाते हैं। मुतकल्लिम और मुखातब, मुतकल्लिम और मुखातब। और गायब, ये किसको कहते हैं? देखें जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं कौन हूं? बात करने वाला, मुतकल्लिम। मैं कौन हूं? मुतकल्लिम। और आपसे बात हो रही है, देखें, मुतकल्लिम बात करने वाला, मुखातब वो जिससे बात की जा रही है। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं ना, आप लोग जितने भी लाइव हैं इस वक्त है, तो आप सारे लोग क्या हैं? मुखातब। आप सारे लोग क्या हैं? मुखातब हैं। और गायब उस शख्स को कहते हैं जिसके बारे में बात की जा रही है, या यूं आप तारीफ कर लें कि मुखातब जो बात करते हुए मौजूद ना हो। अब मुझे ये बताएं, आप में से हाथ को मैं अपना ये जो है ना इकरा, आप अपना माइक खोलें, शाबाश। इकरा राशिद। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। इकरा, आप मुझे ये बताएं, मैं बात कर रहा हूं तो मैं कौन हूं? मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप मुझे क्या कहेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही इकरा की, तो मैं किसी और को कहता हूँ वो अपना माइक खोलें। आमना रियासत, आप अपना माइक खोलें।